Yes. Thank you. So we will start with today's session. We last time had done up to shlok number 7. So which we read as Yatra Yatra Sitho Yogi Sarva Karyeshu Sarvada Urdhva Jivah Sthiro Bhutva Dharayet Pavanam Sada Nabho Mudra Bhaved Desha Yogi Nam Roganashini. So what is the importance of Nabho Mudra that we understood after doing the Mahamudra? We came across this Nabho Mudra. Now, Nabho Mudra, as we discussed in the last class, it is different from Khechari. It is like a leading practice or a preparatory practice for Khechari Mudra that we were discussing in the last class. Now, next we are coming across Udyan Bandh. अगर आप हठ प्रदीपिका के साथ में अगर तुलना करेंगे तो उड्डयन बंद जो है मतलब 5वें से 6ठा प्रैक्टिस बताया गया है 10 मुद्राओं में, लेकिन यहां पर देखो उन्होंने उड्डयन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद तीनों के तीनों को महाबंद से पहले एक्सप्लेन किया. So somewhere this is really helpful for us as a preparation and going properly towards the understanding of the whole process of the yoga. One second. Yes. Now we will go ahead and start with the Udyan Bandh shloka. Udare Pashimam Tanam Nabe Urdhvam Tukarayet Uddinam Kurute Yasmad Vishrantam Mahakhagaha Udyanam Twasau Bandho Mrityu Matang Kesari. So like Hatha Pratipika, even Gherand Muni wants to appreciate Udyan Bandh as Mrityu Matanga Kesari. That means Udyan Bandh is a very courageous practice like that of a lion, which can overcome the what you call as a Matanga, that is elephant, with the elephant like heavy death, which can overcome death also. तो यहाँ पर डेथ को हेवीनेस के रूप में देखा जा रहा है या मृत्यु के रूप में देखा जा रहा है. और जैसे ये जो प्रैक्टिस है उड्डयन बंद, इसको एक लायन के रूप में देखा जा रहा है. तो लायन की जो क्वालिटीज होती हैं, उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज ऑफ करेज, दैट इज ऑफ फुल ऑफ एंथुसियाज्म. It is not slow, it is very fast. So Udyan Bandh is that kind of practice which will lead you to experience the other flow in yoga. The flow in yoga means stimulation of Kundalini, raising of the prana, becoming more and more detached. All these things will be carried out with the Udyan Bandh in a profound manner. And that is the reason that he tells us that this is a practice known as Mrityu Matanga Kesari. Acha. Now what is the technique? He says, Udare Pashimam Tanam Nabe Urdhvam Tu Karayet. Let your abdomen be pulled towards the back and raise up. The navel region be raised up. As a result, what is going to happen? Uddinam Kurute Yasmad Vishrantam Mahakhagaha. As a result of which the great bird Pran will start flying upwards. And this bird, this practice is known as Uddiyana, which is helping us to overcome the tamasikta of elephant and make us rajasic towards sattva. So there is a positivity, there is a change of turnaround. और ये हमने कई लोगों में एक्सपेरिमेंट वाइज इसको जो है इस्तेमाल भी किया हुआ है. एक्सपेरिमेंट वाइज मीन्स व्हाट? मेनी ऑफ people used to come to us and tell us कि we don't know what has happened to us that we are feeling very lazy, we are not feeling that active, we are feeling sleepy. So in that case we want to buck up, we want to
take up the responsibility, we want to do well, so what are the practices that we should be doing regularly? और उसमें उड्डयन बंद एक प्रैक्टिस है जिसको हम पहले तड़ागी मुद्रा सिखाते हैं और तड़ागी मुद्रा सिखाते हुए फिर उनको उड्डयन बंद की ओर ले जाते हैं. एंड इट हैज बीन सीन दैट दिस पीपल वर रियली डूइंग वेरी वेल विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 3 months शुड बी देयर. एंड देन यू कैन सी ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आपको मिलेंगे जिसमें उड्डयन बंद और नवली दोनों को साथ में रखकर जो स्टडी किया गया है. एंड इट वाज फाउंड कि हाउ ए स्लगिश एब्डोमेन, मतलब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर से काम नहीं कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बराबर से काम नहीं कर रहा है, आपका यूरिनरी सिस्टम बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो वो पूरे एब्डोमेन वाले एरिया के अंदर चेंज ओवर लाने के लिए अगर आप उड्डयन बंद के साथ साथ अगर नवली आती है तो नवली को भी रेगुलरली साथ में अगर करते हैं तो यू कैन सी मल्टीपल चेंजेस टेकिंग प्लेस. समग्र बंधनाद ये बंधनाध्येत उड्डयनम विशिष्यते उड्डयने समभ्यसते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत. हाँ जी बोलिए. नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि एक तो ये जो दो चीज है. पहली चीज ये जो अपन सुनते हैं ना, योगी के ऊपर से एब्डोमेन के ऊपर से कार गुजर गई और वो कहते हैं कि दे काइंड ऑफ फिक्स देयर ब्रीदिंग इन अ स्पेशल वे. आई मीन ऐसा हमने सुना है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन ब्लॉक. सो क्या पहली चीज क्या उसका रिलेशन उड्डयन से है? और दूसरी चीज कि मेरे जैसे डिस्क्रिप्शन में और हमने जो प्रैक्टिस भी किया था एज सच बड़ी सिंपल प्रैक्टिस लगती है ना, कि जस्ट एब्डोमेन के अंदर किया और ऊपर किया और उड्डयन बंद हो गया. बट जाहिर है कि इतनी सिंपल प्रैक्टिस है नहीं. तो थोड़ा सा इसके मैंने पूर्व उसमें क्या चीज आनी चाहिए, या व्हाट मेक्स इट मोर कैलिब्रेटेड देन व्हाट इट अपीयर्स, ये थोड़ा सा अगर विस्तार करें. सबसे पहले जो है हमको डीप ब्रीदिंग रेगुलरली करते रहना चाहिए. और डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जो है आपने एक्सलेशन डीपली अगर कर दिया तो सांस को बाहर रोककर पेट को अगर हम ढीला छोड़ देते तो क्या होता है. ये सेकंड प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है. थर्ड प्रिपरेटरी, सांस को बाहर रोककर मतलब डीप ब्रेथ्स आप कर रहे हैं और पूरी तरह से सांस को आपने बाहर छोड़ दिया और पेट को ढीला छोड़ दिया जी. तो क्या होता है, ये एक सेकंड पार्ट हो जाता है प्रिपरेशन का. और थर्ड प्रिपरेशन का पार्ट हो जाता है कि सांस को लेकर पूरी तरह से छोड़ दिया डीप ब्रीदिंग करते हुए. न सिर्फ पेट को आपने ढीला छोड़ा बल्कि सीने को भी आपने चौड़ा किया. तो जैसे ही आप सीने को चौड़ा करते हैं आपके चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ऑटोमेटिकली जो है देयर इज ए क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ सक्शन व्हिच पुल्स द टमी इन. कई लोग कहते हैं कि पेट को हमको अंदर की तरफ खींचना होता है, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे टीचरों से सुना हुआ है, आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में यही लिखा हुआ रहता है कि भाई पेट को अंदर पकड़ के खींचो. लेकिन पेट को जब अंदर पकड़ के खींचते हैं तो दैट इज विद द एफर्ट, मतलब आप उस पर प्रयास करते हुए पेट को अंदर ले रहे हैं. जबकि अच्छे अच्छे टीचरों से अगर कभी आप सलाह लेंगे तो वो क्या बोलेंगे आपको कि आप सीने को चौड़ा करो और पेट आपका अपने आप अंदर खींचा जाएगा. हाँ, उसको इनिशियल सपोर्ट देने के लिए आप थोड़ा सा उसके साथ साथ मॉक इनहेलेशन करोगे तो पेट और अंदर अच्छी तरह से जाएगा. लेकिन आइडियली जो है आपका पेट जो है एकदम मुलायम होना चाहिए. जैसे कौन सी इनहेलेशन करेंगे? इनहेल करके आपने एक्सेल कर देना है. हाँ जी. एक्सेल करने के बाद में जो है पेट को ढीला छोड़ दिया आपने. अब पेट को ढीला छोड़ने के बाद में आप सीने को चौड़ा कर देते हैं. तो जैसे ही सीने को आप चौड़ा करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है चेस्ट का वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हवा तो जा नहीं रही, आपने सांस को बाहर रोक कर रखा हुआ है. तो जैसे चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा देयर विल बी अ वैक्यूम क्रिएशन इन द चेस्ट. इफ दैट इज हैपनिंग देन योर उड्डयन इज हैपनिंग इन अ प्रॉपर वे. और ऐसा कहते हैं कि जब आप उड्डयन करते हैं और खास करके जो अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट का उड्डयन कैसे चेक करते हैं? दे विल कीप देयर हैंड ऑन द एब्डोमिनल वॉल
और एब्डोमिनल वॉल अगर कभी उनको बहुत ही हार्ड दिखता है तो वो ये समझ जाते हैं कि ये जबरदस्ती पेट को अंदर खींच कर रखा हुआ है, क्योंकि मसल्स आपके टेंशन में रहते हैं। तो पता चल जाता है कि मे बी यू आर जस्ट पुलिंग द टमी इन। लेकिन अगर आपने उड्डयन सही तरीके से किया हुआ है तो आपका पेट एकदम मुलायम रहता है। योर एब्डोमेन इज नेवर हार्ड। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अग्निसार। अग्निसार में भी हम यही एक्शन करते हैं, लेकिन वहां पर पेट आपका हार्ड हो जाता है, जहां पर आपको पेट अंदर बाहर करना होता है। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं कैवला धाम में था, तो हमारे जो टीचर थे भरत सिंह जी, वो कहते थे कि जब तुम प्रैक्टिस करो तो आपका पेट जो है वो उड्डयन बन में मस्के के जैसा मुलायम होना चाहिए, और जब तुम अग्निसार करो तो आपका पेट जो है एक स्टील के रॉड के समान हार्ड होना चाहिए। तो उनका समझाने का तरीका बड़ा अटपटा लगा था मुझे। तो मैंने उनसे उस टाइम पे सवाल पूछा कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो बोले शुरुआत में तो आपको दोनों एक जैसे लगेंगे, क्योंकि आप एफर्ट डालते हो, उड्डयन बंद करने के लिए भी एफर्ट डालते हो और अग्निसार करने के लिए भी आप एफर्ट डालते हो। लेकिन एक वक्त आगे जाकर ऐसा आता है जिसमें जो है सिर्फ अग्निसार में आपका जो है पेट आपको ऐसे हार्ड दिखाई देगा, लेकिन जहां पर उड्डयन की बात आ जाएगी तो पेट आपका एकदम मुलायम रहेगा। So this is how teachers are explaining it. But many a time when we go to the examinations and all, this kind of quality education is not taking place, and people are also not doing in that way. And that is where there is a lack of proper training also. तो कई बार ऐसे लगता है कि लोगों को जो है हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए जो है we should make them understand कि how important it is for us to go through this kind of understanding of the vacuum, the suction। क्योंकि जब वैक्यूम क्रिएट होके जब सक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपका पेट मुलायम रहेगा, और जब आपका सीना चौड़ा नहीं किया हुआ है और आपने जो है पेट को सांस को बाहर छोड़कर अंदर की तरफ खींचा हुआ है तो पेट आपका टफ रहता है, हार्ड रहता है, और उसी हार्ड एब्डोमेन से जो है आपको अंदर बाहर मूवमेंट करने हैं। So these are the 2-3 preparatory practices that we can do very regularly in order to make our उड्डयन बंद successful। जी। हाँ, आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब भाई। मेरे दो छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से हैं। पहली चीज, जब कपालभाति में आप कहते थे कि चेस्ट को फिक्स करो, तब मैंने देखा कि द प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति बिकेम इजियर, एब्डोमेन Yes। मूवमेंट वाज फैसिलिटेटेड। और अभी हाल ही मैंने, वो देसिकाचार्य साहब हैं जो चेन्नई वाले, तो उनकी किताब है हार्ट ऑफ योगा, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो, जो जब हम सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद जो लास्ट में योगिक ब्रेथ होती है, उसमें जो कई बार सिखाया ऐसा जाता है कि भाई पहले आप एब्डोमेन को फुलाइए, फिर चेस्ट को फुलाइए, फिर शोल्डर्स को कीजिए। लेकिन मेरा ऐसा मतलब अनुभव है कि अगर आप पहले चेस्ट को फुलाते हैं, देन एब्डोमेन ज्यादा अच्छे से फूल पाएगा, और शोल्डर्स तो है ही। और मैंने 2-3 दिन, अभी 2-3 दिन हुए मुझे ट्राई करते हुए, आई फाउंड दैट टू बी करेक्ट, कि जैसे ही चेस्ट एक्सपैंड होता है तो वो एब्डोमेन की मूवमेंट, वही जो बात है, वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। सो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल में मेरे छोटे मोटे नहीं, अनुभव के मैच करता है। वो बहुत मायने रखता है, खास करके आपका जो सक्शन यानी नेगेटिव प्रेशर जो डेवलप करने के लिए जो आपको करना चाहिए। इनफैक्ट कुवलयानंद जी ने जब इसको पहली बार समझा और जाना, तो उन्होंने उड्डयन बंद के इस कला को नाम दे दिया अपने गुरुजी का, और उन्होंने उसको उसको कहा, अभी भी ये फेमस है, माधव दास वैक्यूम। माधव दास मैं वैक्यूम, क्योंकि उनके गुरु का नाम था माधव दास जी महाराज, जो अमलनेर के थे। जी। और जैसे ही उन्होंने रिसर्च करके ये देखा कि किस तरह से वैक्यूम क्रिएट होता है और सक्शन पैदा हो जाता है और किस तरह से अंदर की तरफ जो है खींचा जा सकता है, तो वो उन्होंने उस पर्टिकुलर फाइंडिंग को ही उन्होंने नाम दे दिया माधव दास वैक्यूम।
जबकि आपको किसी भी ग्रंथ के अंदर ये वैक्यूम की मतलब तुलनात्मक कहो या फिर रचनात्मक कहो, डिस्क्रिप्शन आपको कहीं नहीं मिलती है ट्रेडिशनल टेक्स्ट में। लेकिन जब बात आ जाती है मॉडर्न गुरुओं की, जैसे कृष्णमाचार्य जी हैं या फिर देशिकाचार्य जी हैं, इन लोगों ने जो सामने एक्सप्रेशन करके बताया, तो एक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई उड्डयन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और ऐसा कई लोग कहते हैं ना कि हु शुड नॉट प्रैक्टिस उड्डयन बन। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि हु शुड नॉट प्रैक्टिस कहने से पहले ये देखो कि व्हाई वी शुड नॉट प्रैक्टिस व्हेन वी आर नॉट कीपिंग वेल। उनका कहना क्या था कि उड्डयन एक ऐसा प्रैक्टिस है, वो करने के बाद में आपके पांचों प्राण को जो है ना वो एक्टिवेट कर देता है। उड्डयन बंद का जो प्रैक्टिस है वो पांचों प्राण को जो है एक्टिव कर देता है। तो व्हाई वी शुड नॉट प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि तुम अगर कभी थोड़ा बहुत भी अगर कभी तुम वो हालत में अगर कभी कर सकते हो तो प्लीज करो, कहने का मतलब वो था। मतलब कोई इंसान बहुत ही बीमार है तो भले ना करे, लेकिन अगर कभी किसी को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि भाई मुझे कॉमन फ्लू है, सर्दी हो गई है, तो उसने पार्शियल उड्डयन बंद करते रहना चाहिए एम्प्टी स्टमक पे, एंड ही विल फाइंड दैट ही इज बीइंग हेल्प्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम फास्ट। तो ये गुरुजी का अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, जबकि इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है एज सच। उन्होंने अपना मत सामने रख दिया, बट एट द सेम टाइम इट वाज हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल। एंड ही यूज्ड टू से कि थेरेपी में भी जो है ये प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे तो अच्छा है। इवन हार्ट पेशेंट्स के लिए सही में देखा जाए तो सांस रोकने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वो कहते थे कि मैं आपको सांस रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सांस लो, सांस छोड़ो, और खाली अपने आप को सांस लेने से पहले मौका दो कि आपकी सांस सस्पेंड हो जाए। बस उतना भी अगर आप करते हो तो यू आर एक्टिवेटिंग द उड्डयन वायु, उड़ान वायु। और वो उड़ान वायु के वजह से जो है आपके बाकी के और जो चार प्राण हैं, प्राण वायु हैं, वो भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं। सो दिस इज वेयर द ब्यूटी ऑफ उड्डयन बंद ऑलवेज कम्स इन। और यहाँ पर उन्होंने हमें, हाँ बोलिए। कहीं उड़ान वायु की वजह से ही तो इसका नाम उड़ियान बंद नहीं रखा गया। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने लिखा है ना, उड्डीनम कुरुते खगः। मतलब कहीं ना कहीं पूरे जो हमारे शरीर का जो प्राण है, उसी को उन्होंने बता दिया कि ये आपके शरीर के अंदर एक ऐसा पंछी है जो उड़ने लग जाता है। अभी तक आपने इसको उड़ने के लिए मौका नहीं दिया, लेकिन उड्डयन बंद करने की वजह से वो उड़ने लग जाता है। तो उसका उड़ने का अर्थ ही ये होता है कि प्राण जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्होंने देखो उस श्लोक में वहां पर लिखा हुआ है, उड्डीनम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखगा। हाँ, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है विदाउट रेस्टिंग, मतलब ये इतना पावरफुल हो जाता है, इतना फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जेटिक हो जाता है कि इट इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्टॉपेज एज सच। एंड व्हाट इज दैट महाखगः? द ग्रेट बर्ड इज नथिंग बट द प्राण ओनली इन आवर बॉडी, एंड दैट बिकम्स फ्लाइंग इन आवर बॉडी। फ्लाइंग का अर्थ क्या हो जाता है? कई बार हम बीमारी की हालत में रहते हैं तो उसकी एक वजह होती है कि भाई हमारे जो पंच प्राण है वो बराबर से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे पंच वायु, प्राण वायु के साथ साथ जो दूसरे वायु हैं वो बराबर से काम नहीं कर रहे। तो उड्डयन बंद की प्रैक्टिस से जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार का करेक्शन शुरू हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स। लेकिन मैं एक बात और भी ये बोलूंगा कि जो इंसान ने कभी योग किया ही ना हो, किसी ने कभी किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस ना की हो, किसी प्रकार का व्यायाम ना किया हो, किसी प्रकार की भागदौड़ नहीं की हो, यानी एरोबिक्स नहीं किया हो, या फिर आ, आपका जो है जिम ना किया हो, तो ऐसे इंसान को तो फिलहाल अगर वो बीमार है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर योग का अभ्यासी है, फिजिकल फिटनेस में है, रेगुलर जैसे कि मैराथन रनर्स हैं, अगर ये सब लोगों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे उड्डयन करने के लिए बोलेंगे तो बिलीव मी इवन देयर लंग कैपेसिटी इंप्रूव्स। एंड दिस इज अ स्टडी कि जितने लोग जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं,
जैसे कि इथोपियन रनर्स हैं, इथोपियन रनर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस में के समय तो उनको ब्रीदिंग करना ही होता है, दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा रोजमर्रा की प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ये सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ की प्रैक्टिस करते हैं। उनके प्रैक्टिस के अंदर इसको नाम उड्डयन बंद ऐसे कुछ दिया नहीं गया, लेकिन वो खास करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ऐसा करने से जो है हमारे जो रिटेंशन ऑफ एनर्जी है वो हाई हो जाती है। क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं ना, वो फिजिकली उतने ज्यादा क्या कहते हैं, वो मस्कुलर नहीं रहते। वो ये बात और है कि उनका मसल्स टोन्ड रहता है, लेकिन उनके जो बल्की मसल्स बिल्कुल नहीं रहते, बॉडी उनकी हेवी बिल्कुल नहीं रहते, एकदम दुबले पतले मिलेंगे आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। और यही एक वजह होती है कि उनका लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो जो है सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। और ये प्रैक्टिस और उड्डयन बंद में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट अननोइंगली और नोइंगली दे आर प्रैक्टिसिंग उड्डयन बंद, ऐसा है। और ये मतलब रिसर्च स्टडीज के अंदर आया हुआ है, और इसको जो है कनेक्ट किया गया है वालसा वालसा ब्रेथ। वालसा वालसा बोल के एक नाम है, अगर कभी आप इस पे चले जाएंगे इंटरनेट पे और उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेंगे, तो वो आपके चेस्ट की ब्रीदिंग को समझकर आपको बताया जाता है कि भाई कब आपका जो है लंग्स जो है, आपको समझना चाहिए कि इसकी एबिलिटी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और वो सस्टेन कैसे रहता है। और क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम ज्यादा देर तक सांस को बाहर रोकेंगे तो वी आर डिप्राइविंग आवर बॉडी with the vital oxygen and we are making the body filled with carbon dioxide। तो ये भी स्टडी में है कि अगर कभी आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो आपको किस तरह से हेल्प करती है। दिस टू थिंग्स आर देयर। सो कहीं ना कहीं ये जो, हाँ सर बोलिए। In the note, it is also written that हाँ, when accompanied with pranayama, it is practiced under inhalatory conditions. that's true, because we do Uddiyana Bandh after inhalation. Na? We hold the breath in and then we go for chin lock and abdominal lock. So this Uddiyana Bandh is Oh, different that from way. the Okay, independent. okay. हाँ, Oh, okay. inhalatory conditions means you have to inhale and hold the breath in. But here the abdomen will not go automatically in. You have to pull it in. Right. And this kind of breathing matches with the explanation which has been given here. Okay, you have to pull the tummy in. But actual Uddiyana Bandh is supposed to be practiced without keeping the breath in. Means you have to expel the breath out Inhalatory and then you condition. have to, yes, it's like that. But at the same time, sir, let me emphasize this. Okay, when you are doing with the breath being held in, it is very good as a massaging effect to your abdominal organs. Because already from the top, the lung is filled with full air. That means almost 80 to 90% of your lungs are filled with the air. And when you apply chin lock and Uddiyana Bandh, you are creating a kind of pressure on your abdominal organs. So air is there in the lungs, but when you pull the tummy in and not allow the abdomen to go out, there is a pressure from the top as well as from front. और नीचे से मूल बंद रहता है, तो चारों तरफ से वो कंपार्टमेंट को हम ऐसे दबाते हैं। तो जब वो जो दबाते हैं उसका इंटेंशन एक ही है, टू क्रिएट द हीट टू स्टिमुलेट द कुंडलिनी। बट फिजिकली हमारे ऑर्गन्स को इतना अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ कि ऐसा कहते हैं ना कि व्हेन वी इनहेल the 100% of the air that we are inhaling consists of minimum 20% of oxygen, and in our normal breathing out of that 20% we take only 4% and 16% is expelled out. Correct. But when we do the retention of kumbhaka, and in that when we do the Uddiyana and all the three bandhas, we are actually utilizing all the 20% oxygen which is there in the air, and that is getting replaced slowly with carbon dioxide. Now when the person maintains for a longer period, then it becomes a different thing altogether, where the carbon dioxide is also coming into the stream of the blood, and how alkalinity is enhanced with this
introduction of carbon dioxide in the bloodstream is also a study. So these are very scientific studies, thereby which we can come to the conclusion कि how our yogis are becoming so powerful. अभी थोड़ी देर पहले सुनील भाई बता रहे थे कि मतलब उनके पेट इतने स्ट्रांग रहते हैं कि ऊपर से गाड़ी भी चली जाए तो कुछ नहीं होता. तो एक्चुअली दैट इज अ योगिक ट्रिक, आई वुड से. इट इज अ योगिक ट्रिक वेयर यू आर ट्रेनिंग योर एब्डोमेन टू बी सो मच नाइस. देखो, जो हम गाड़ी चलाते हैं उसके अंदर जो टायर लगा हुआ होता है, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें कौन सी हवा है? साधारण हवा है. और वो साधारण हवा से हम उस टायर के ऊपर 2 टन से लेकर 10 टन से लेकर 25 टन से लेकर 50 टन का भी हम लोड रख सकते हैं और उसको मोबिलाइज कर सकते हैं. तो ये शरीर के ऊपर अगर आप चाहें तो उसी प्रकार का लोड आप सस्टेन कर सकते हैं, provided you take all the other care, because you have trained your body to resist any kind of pressure from the external things, to keep it at bay. क्योंकि बॉडी के अंदर जो हवा आपने पकड़ के रखी हुई है, अगर आपने हवा को छोड़कर अगर कभी पेट को ढीला छोड़ दिया तो यू विल बी क्रश्ड. But what you are doing, you are inhaling and holding the breath in, by which the pressure is sustained out and you will not be affected. और उसके लिए पहले आपका मसल स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, मसल टोनिंग अच्छे से होना चाहिए, और आपके खास करके जो बोन्स हैं वो बोन्स के आसपास जो है आपका मसल्स का प्रोटेक्टिव लेयर आ जाना चाहिए. और फिर उसके ऊपर हवा जो आपको जो है आपके एब्डोमिनल वॉल को ऐसा फुगा कर रखती है कि भाई जो चीज भी उसके ऊपर से चली जाए कुछ नहीं हो सकता उसको. So obviously it is like a trick played to make people understand that nothing happens to them when a tire also goes away, but it is a yogic trick which a person can do and sustain. हमने तो पता नहीं, मैंने आप लोगों के साथ में ये पहले शेयर किया क्या नहीं, 2006 में I went to Bhopal for an international conference, and there was this person, as he did Udyan, he kept that iron rod at the jugular notch and pressed it at the wall. वो आयरन रॉड बेंड हो गया लेकिन उसके गले के अंदर पियर्स नहीं किया. और वो आयरन रॉड जो है हम कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं ना, आयरन रॉड, उतना बड़ा थिक आयरन रॉड. ना दिस इज नो जोक्स. और ये हमने अपने आंखों से देखा हुआ है. एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ योगा. तो इट वाज सच अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ योगिक practices can help us to become stronger. ये चीज आपको जिम के से आपको नहीं मिलेगी. आपका फिजिकल स्ट्रेंथनिंग अच्छे से हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर का जो स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, प्राण वायु का, आपके चक्रास का, वो सिर्फ योग से ही हो सकता है. दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड. तभी क्योंकि सबस्ट्रेटम बेस है प्राणवायु सामने. बिल्कुल. जिम में क्योंकि प्राणवायु स्ट्रेंथन नहीं होती है, इसीलिए वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता. आप छोड़े तो इनफैक्ट एज सीन कि वो बल्कि ब्लोट भी हो जाता है इंसान, मसल तो खराब हो ही जाती हैं और ब्लोट भी हो जाता है. तो वो क्योंकि आप बिना फाउंडेशन के आपने अननेसेसरी मसल्स को स्ट्रेंथन कर लिया, तो आई थिंक बॉडी इज स्ट्रेन्ड, उसका फिर वो इफेक्ट शायद नजर आता है. करेक्ट? बिल्कुल, एकदम सही. यहाँ तक कि जो कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जब से हमने ये उड्डयन बंद वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो हमारी भूख जो है वो बहुत ही कम हो गई है. हमें भूख नहीं लगती. क्या ये नेचुरल है? तो आई ऑलवेज टेल देम इट इज वेरी नेचुरल, डोंट वरी. भूख का नहीं लगना अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्या आपको कमजोरी फील हो रही है ये जानना चाहिए आपको. क्योंकि अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो आपको कमजोरी का भी एहसास कराती है. और जब आपके शरीर के अंदर बिना न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए अगर कभी आपका शरीर आपको वो एहसास करा रहा है कि आई एम हेल्दी, कि मैं स्वास्थ्य को महसूस कर रहा हूं, अगर आपका शरीर आपको यह एहसास दिलाता है, then just understand that your pranas are working to the best of their abilities.
That is how the yogic practices are supposed to be understood. And I really appreciate Gheranda Muni for this. You know why? Because इन्होंने प्राणायाम से पहले ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, ताकि जब हम प्राणायाम में जाएं तो ये सारी चीजें जो है हम लेकर वहां पर पहुंचे और फिर उसका अभ्यास करें, तो एक अलग ही जो है हमारे प्रैक्टिस के अंदर जो है निखार आता है. दैट इज हाउ इट इज. सर दूसरा जी. एक सवाल ये था कि जब हम उड्डयन बंद करते हैं तो वैसे ही वो मूल बंद आप ही बन जाता है, मूल बंद भी अपने आप बन जाता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अगर कभी उड्डयन बंद किया तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर डेवलपिंग. So when there is a negative pressure developing, your abdomen will cave in, your pelvic floor, diaphragm will also go up. क्योंकि यहां से जो है आपका ये डायफ्राम ऐसे शेप में आ गया, तो ये पेट जो है अंदर खींचा चला जाता है और नीचे से मूलबंद ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो सक्शन वैसा आ गया ना. और उसके साथ साथ अगर कभी आप एफर्टफुल मूलबंद भी करते हैं तो आप जो कर रहे हैं उसमें 4 चांद लग गए, ऐसा समझिए आप. तो means already it is there, but at the same time with your efforts you are putting it into more efficiency. आप उसका और ज्यादा लाभ लेने के लिए आप रेडी हो गए, ऐसा हिसाब आ जाता है. So that is how the practice is really wonderful practice. और मैं तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 3-4 साल मेरे साथ में प्रैक्टिस किया और उनकी उम्र हो गई है, मतलब समझो दे आर ऑलमोस्ट अराउंड 70-75. तो आई एडवाइज देम टू डू ओनली 5 to 6 प्रैक्टिसेस इन द होल 1 hour. और उसमें उड्डयन बंद एक है, उसमें उड्डयन बंद एक है. उनको उनको कहेंगे कि आप ताड़ासन कर लो, आपको वृक्षासन करना नहीं है, क्योंकि अभी आपके बोन्स आपको साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको बैलेंसिंग के लिए अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहिए. तो आप ताड़ासन करो दोनों पैरों को जमीन पे रखकर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. उसके साथ साथ जो है आप उड्डयन बंद का प्रैक्टिस किया करो. ताड़ासन का स्ट्रेच करने के बाद में अगर आप उड्डयन करते हैं तो एक अलग ही जो है इम्पैक्ट आपको चेस्ट पर, एब्डोमेन पर और बैक पर आपको दिख कर आएगा. नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी अंडरस्टूड बाय द पीपल हु आर ऑलमोस्ट 70+. क्योंकि मेरी नजर में अगर कोई इंसान 60+ भी होगा तो मेरे लिए वो यंग ही है. I will consider that person old who is 70 and 75 above. हमको उसी तरह से उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम के अंदर भी यही बातें कही गई कि एक्चुअल बुढ़ापा जो है वो 75 साल के बाद ही आपको नसीब होता है. जबकि 60 से 75 साल की जो उम्र है वो बुढ़ापे की नहीं है. ये बात और है कि हमने वो रिटायरमेंट एज डाल दी अपने आप के लिए, ऐसा है. Anyways, we will go ahead now. If you see the shlok number 9, समग्राद बंधनाद ध्येयेत उड्डीयानम विशिष्यते उड्डीयने समभ्यस्ते मुक्ति ही स्वाभाविकी भवे. अब देखो इन्होंने कितना उसको आगे लेके गए कि वो कहते हैं कि मुक्ति ही स्वाभाविकी भवे. In fact, it will naturally lead you into liberation. Uddiyana Bandh is considered as one of the most important among all the bandhas. If this is properly practiced, अगर इसका निरंतर अभ्यास आपने किया तो it will lead to liberation. अब नेक्स्ट हम आते हैं जालंधर बंध की तरफ, और यहाँ पर देखिए जी कि इसमें are there particular muscles that need to be strengthened in order to practice उड्डयन बंध well? या और उड्डयन बंध नो नहीं है? नो नहीं, लेकिन नौली के लिए है. अगर देखो उड्डयन बंध इज अ प्रैक्टिस वेयर द एब्डोमेन हैज टू बी रिलैक्स्ड. ओके. तो आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती. लेकिन हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके ब्रीदिंग के मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग योर एब्डोमेन एंड चेस्ट वेरी स्ट्रांग. ऐसा आपको अंदर से ही महसूस होता है. लेकिन आपको उनको, जैसे अभी आपने जो सवाल पूछा, तो आई अंडरस्टैंड विथ कि हमको क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे एब्डोमिनल क्रंचेस हैं, जिससे हम पेट को स्ट्रांग बनाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं. हाँ, ये कब जरूरत पड़ जाता है? अगर आप नौली की तैयारी करते हैं
तो उड्डयन के साथ साथ अगर कभी आपने एब्डोमिनल मसल्स को भी अगर कभी स्ट्रांग बनाकर रखा, तो यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ टू डू नौली बेटर. And Nollie is best done prior to Uddiyan Bandh? नहीं. ऑलवेज, ऑलवेज. क्यों पता है? क्योंकि नौली के अंदर हम चेस्ट को एक्सपांड नहीं करते. नौली और अग्निसार जो है ये क्रिया में आती है, और सांस को बाहर रोककर अगर कभी हम सस्पेंड करके पेट को अंदर खींचकर अगर हम एब्डोमिनल वॉल को अगर कभी हम ये कर सकते हैं, यानी आइसोलेट कर सकते हैं, तो आपकी नौली क्रिया शुरू हो जाती है. जो प्रॉपर उड्डयन है, यानी आपको काफी देर तक मेंटेन करने आना चाहिए, देन दैट बिकम्स अ डिफरेंट प्रैक्टिस ऑल टुगेदर. लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपको नौली करने के लिए उड्डयन की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए, क्योंकि जब तक उड्डयन की टेक्निक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका नौली की तरफ जाकर उसको एस्टैब्लिश करने का जो तरीका है वो आप अपना नहीं पाते. सो उड्डयन बंद आना चाहिए, लेकिन उड्डयन बंद आना और नौली करना ये एक तरफ है, और उड्डयन बंद का प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस करना ये दूसरी तरफ है. तो वो उड्डयन बंद का जो प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस है, आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि वो आपकी साधना हो गई. आप देख लीजिए जितने भी उपनिषद हैं उसमें से योग उपनिषद भी हैं, क्योंकि योग उपनिषद भी जो है वेदों से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं. कहीं संहिता से लिए गए हैं, तो कहीं ब्राह्मणास में से लिए गए हैं, तो कहीं आरण्यक में से लिए गए हैं. ऐसे योग उपनिषद भी बने हुए हैं. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो उपनिषद जो सिर्फ ज्ञान योग या ज्ञान योग का हमको परिचय कराते हैं, तो सारे के सारे उपनिषदों के अंदर जो है साधना शब्द के रूप में जरूर आता है. और कहीं पर भी जो है, जैसे मांडुक्य उपनिषद आप ले लो, तो उसमें ओंकार साधना की बात की गई है, तो किसी में गायत्री साधना की बात की गई है, तो किसी में सोहम के साधना की बात की गई है. और ये सारी साधनाओं के अंदर एक बात कही जाती है कि बाय डूइंग दिस रेगुलर प्रैक्टिस, साधना का मतलब यही होता है कि भाई आप उसको लंबे समय तक आप उसका अभ्यास करो. उसके बाद में ये बात का एम्फसाइज दिया जाता है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी सांसें रुक सी गई. तो सांसों का रुकना और साधना में तरक्की होना और हमारे योगिक प्रैक्टिसेस के अंदर उड्डयन बंद का प्रैक्टिस करके सांस का रुकना, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं. वहां पर ज्ञान योग यानी आप पढ़ाई लिखाई करके आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े टीचर्स ये कहते हैं कि उड्डयन बंद का अगर प्रैक्टिस सही तरीके से हो जाए और वो साधना के लायक हो जाए, तो अंदर जो 4 वेदों का ज्ञान जो है हर इंसान के अंदर ऑलरेडी बसा हुआ है, वो अपने आप रिवील होने लगता है. तो ये खुद स्वामी कोवलन जी ने कहा, और उन्होंने ये भी लिख दिया वहां पे कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे गुरु के शब्द हैं. तो माधवदास जी महाराज का कहना ये था कि जितना आप उड्डयन बंद को साधना के रूप में करोगे, उतना इंटरनली यू विल गेट कनेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज. दैट इज वेयर उड्डयन बिकम्स ए वंडरफुल प्रैक्टिस. इसीलिए कहते हैं ना कि ये उड्डयन के बारे में बात करने के लिए बैठो तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए, इतना इसके अंदर जो है हमने सुना है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं, तो जो कुछ आपने सुना है ना, उससे कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है और वो बरकरार रहता है, वो नॉलेज जो आपने लिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस से कनेक्ट होकर जो है आपके अंदर एस्टैब्लिश हो जाता है. एंड देन यू कैन रिले और रिलेट इट बेटर टू योर स्टूडेंट्स एंड ऑल. इसलिए कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं, सर इसके बारे में और बताइए, तो हम बोलते हैं कि पहले प्रैक्टिस कीजिए, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उनके पास पूछने के लिए कुछ शब्द ही नहीं रहते आगे. तो आज जब मेरे 10-10, 12-12 साल के जो स्टूडेंट हैं, जो बहुत माने हुए टीचर्स बन गए आज, तो वो कभी कभी बोलते हैं कि आज हमको समझ में आता है सर कि जब हम आपको कुछ सवाल पूछते तो आप बोलते कि प्रैक्टिस करो, अपने आप पता चल जाएगा. तो आज हमको एहसास होता है कि वो प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिकली हमको हमारे फिजिकल बॉडी का भी ज्ञान कितना हो रहा है. So this is where the practice really matters in our day-to-day life. That is why we should. It is not only to keep physically fit, but to have that knowledge. We should practice. That is how it goes.
नहीं तो जो हमने भगवत गीता में पढ़ा, जो भाव हैं, 4 भाव हैं, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, और एक है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। धर्म। हाँ, हाँ, तो धर्म भाव। अब आप सोच लीजिए, ये जो भाव का जो एक्चुअल लर्निंग है ना, वो आपके प्रैक्टिस से आपको मिलता है। अगर प्रैक्टिस है तो ये भाव आपके अंदर ऑटोमेटिकली कल्टीवेट होंगे। अगर आपके पास वो प्रैक्टिस नहीं है तो खाली चोपड़ी का ज्ञान आपके खोपड़ी में रहेगा, लेकिन बाकी सब खाली। It is like that. So this is how we have to understand Uddiyaan Bandh to a great level. Now we are coming to Jalandhar Bandh. कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदये न्यसेत जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम जालंधरम महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी। अब ये जो शब्द है जालंधर महामुद्रा, जबकि हम जालंधर को बंद के रूप में देखते हैं, और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ भी है कि दिस इज नथिंग बट ए जालंधर बंद, जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधन। एंड लेटर इट इज रिटन कि ये जो जालंधर है वो महामुद्रा है, मतलब सारे मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ इसको कह दिया उन्होंने। मृत्युश्च क्षयकारिणी, आपके मृत्यु का भी क्षय कर देती है। सो कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय निषेध, क्या है इसमें? आपको चिन को गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चिन को जुगुलर नॉच में ले जाकर, यानी चेस्ट के पास ले जाकर रख देना है। और इस तरह से रखने के बाद जैसे ही आपने ये जालंधर बंद कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर जो 16 आधार हैं, ये 16 आधार हमने हठ प्रतिपिका में भी हमने पढ़ा था। ये जो है टिप ऑफ द टोस, इन द सोल, at the heel, at the ankle, at the back of the knee, near the groin, then at the genital, at the anus and at the navel। फिर उसके बाद में चेस्ट में एक है, गले में एक है, फिर चेहरे के ऊपर जो है आपको 6 मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ये 16 जो है आधार, हमने इसके ऊपर जो है हठ प्रतिपिका पढ़ते समय डिस्कशन किया था कि ये जो षोडश आधार हैं, दिस आर द मर्म स्थान। अभी आयुर्वेद के अनुसार जो है 18 मर्म स्थान होते हैं, और इसमें जो है उसमें से 16 पकड़ लिए गए हैं। सो कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट, प्लेस द चिन on the chest when the Jalandhar Bandh is performed, all the 16 adharas are brought under control. This great Jalandhar mudra conquers death। जब ये बात आती है कि पूरे के पूरे 16 आधार जो है आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है। देखो, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वी हैव 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स as well as we have 5 organs of action। 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब जब हम ये बंध का अभ्यास करते हैं, भले वो उड्डीयान बंध हो, मूल बंध हो या जालंधर बंध हो, ये जो 10 इंद्रिय हैं ये सब के सब अंतर्मुख हो जाते हैं। अब आपको 5 ज्ञानेंद्रिय तो पता है, लेकिन जो कर्म इंद्रिय हैं, जैसे आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपकी वाचा यानी आपका वाक, और आपके जनेंद्रिय, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये 5 जो है आपके ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। ये भी जो है इस कदर विड्रॉ हो जाते हैं कि आप दुनियादारी की तरफ के जितने एक्शन रहते हैं ना, उसके ऊपर विजय पा लेते हो। तो मैंने सर को पूछा, सर हाउ कम? क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, अगर आप पानी पीते हैं तो यूरिनेशन होगा ही होगा, और अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में मटेरियल वर्ल्ड में तो आपका चलना फिरना, बातें करना, ये तो होना ही होना है। तो आपके
ज्ञान इंद्रिय समझ में आते हैं कि भाई अंडर कंट्रोल आ गए, लेकिन जो कर्म इंद्रिय हैं वो आपको जब तक कर्म में नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो कहना क्या था उनका कि साबिर, वो कर्म इंद्रिय जो हैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्क करेंगे, मटेरियल के लिए तो वो बिल्कुल काम ही नहीं करते। मतलब मटेरियल के लिए कहीं जाना है, कहीं काम करना है, कुछ लाना है, कुछ पकड़ना है, कुछ खींचना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी से कुछ समझना है, तो ये सब के लिए आपके कर्म इंद्रिय समझो कार्य में आ जाते होंगे। लेकिन जब आप एक बार स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लेते हो, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो कार्य करने के लिए आपके कर्म इंद्रियों का जो उपयोग होगा, उतना ही कार्य होगा, बाकी के कार्य आपके सारे स्थगित हो जाएंगे। अब आप सोचो कि बाय जस्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ जालंधर बंद, the 16 Aadhaar getting under control will make you to feel as if you no more belong to the material world. आप अपना नाम, पता, घर बार, गाड़ी, बंगला, दोस्त, बिरादर, अपने एस्पिरेशंस जो दुनिया की तरफ है, शायद वो पूरी तरह से आपके कट ऑफ हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है। तो ये जो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं हठ योग की, जब हम कहते हैं ना कि हठ योग की फिजिकल प्रैक्टिसेस जो है हमें राजयोग की ओर ले जाती है, तो कैसे ले जाती है? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए जो है आप वैराग्य भाव में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यानी जो निरोध की स्थिति को हमको पाना है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। यानी आप भले जालंधर बंद का अभ्यास करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको वैराग्य की भी जरूरत है। यानी वो एक्शन करते हुए आपका वैराग्य जो है होते रहना चाहिए। And this is where both the things match with each other and a person is excelling on the path of yoga. ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं कि ये तो जब हम करते हैं तो ये तो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, इससे तो हम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इससे हम डिटैच हो जाएंगे? तो हमको सिर्फ उनको उतना ही बोलना पड़ता है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर बाद में बताइएगा, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके कोई मतलब ही नहीं। And the moment they get into the practice, they realize how they are losing interest in their spouse, how they are losing interest in whatever material they have, how they are losing interest into the aspirations they were having towards the external world. All these things are taken care of. Okay, so this is what is all about जालंधर बंद। और मैं हमेशा कहता हूं कि जालंधर बंद एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपका ये जो क्रेनियल नर्व है, आपके नर्वस सिस्टम में 12 क्रेनियल नर्व है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्टिव और मोटर के साथ साथ जो है पैसिव या फिर सेंसरी नर्व्स का जो काम करते हैं, ऐसे 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। और जालंधर बंद से ये 12 के 12 पर एक प्रकार का इंपैक्ट आता है। और ये इंपैक्ट कैसा है कि आपके पंच ज्ञानेंद्रिय तो अंदर की तरफ अंतर्मुख हो जाते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन आपके फिजिकल बॉडी से, जो आपको बाहर की तरफ रिलेट करता है, आपके इमोशन से, आपके डिजायर से, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से, ये सारी चीजों के ऊपर जो है आपका अच्छा खासा जो है नियंत्रण आ जाता है। एंड दैट इज व्हाई जालंधर बंद is said to be one of the important practice to be done during pranayama. कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम को नेक का प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं ठीक है, आप जीवा बंद लगा लीजिए। अगर आप जीवा बंद लगा लेंगे तो शायद पार्शियल जालंधर बंद वैसे भी हो जाता है, तो यू कैन हेल्प योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम जालंधर बंद इज जालंधर बंद। नो प्रैक्टिस कैन सब्स्टिट्यूट जालंधर बंद। और हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा कि मूर्छा प्राणायाम के लिए किस तरह से जालंधर बंद जो है इंपॉर्टेंट रहता है, इवन वाइल डूइंग रेचक। इसमें भी आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मूर्छा प्राणायाम, क्योंकि इसमें तो ये बताया गया है कि मूर्छा इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर समाधि ऑल्सो। तो हमारे लिए जालंधर बंद एज अ प्रैक्टिस related to pranayam as well as for samadhi
becomes a very important practice. That is where Jalandhar Bandh should be practiced regularly. कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें होता क्या है, इसमें तो खाली हमको गर्दन नीचे करके ही तो बैठना पड़ता है, सांस को अंदर रोको या बाहर रोको। तो फिर वही जवाब, प्रैक्टिस करोगे तो आगे पता चलेगा। हम क्या एक्सप्लेन करें, क्योंकि जितना एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे वो सब आपके लिए किताबी नॉलेज हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाता है। दैट इज वेयर योर विजडम इज कमिंग इनटू कंसिडरेशन। दैट इज हाउ वी शुड टेक इट इनटू द प्रैक्टिस। ओके, सर इसके लिए प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस कौन सी अच्छी रहेंगी? जो नेक मूवमेंट हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, दैट इज ऑलवेज बेटर। और वो नेक मूवमेंट के अंदर जो हम एक्सटेंशन ऑफ द नेक करते हैं, that is always helpful. The more the extension of the neck is happening, the better is your Jalandhar Bandh. It is said कि आपका जालंधर बंद जो है उतना अच्छा होने लगता है अगर आपने नेक का एक्सटेंशन देकर अपने गर्दन के मसल्स को अच्छी तरह से टोन करके अपने स्पाइन को जो है प्रॉपर से हेल्दी रखा। एंड any kind of stretch related to your shoulder, related to your back, related to your neck is always going to be very helpful for Jalandhar Bandh. Always. जैसे आपने पर्वतासन किया तो बैक के मसल स्ट्रेच होते हैं, ताड़ासन किया बैक के मसल स्ट्रेच होते हैं, हस्तपादासन किया तो पैसिव स्ट्रेच आता है आपके नेक के ऊपर जब आप गर्दन को नीचे ढीला छोड़ देते हैं। All these practices are good. All these practices are. नहीं तो कई बार जो है आजकल क्या है, गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो यूट्यूब के ऊपर जो नॉलेज मिलता है उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है कि इट इज बीन सेड कि अगर आप जालंधर बंद रेगुलरली करेंगे तो कंठ के जो सारे दुख हैं, यानी कंठ की जो सारी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब लोग कंठ की बीमारियां दूर हो जाएंगी, उनके दिमाग में एक ही आता है कि गर्दन की बीमारी भी दूर हो जाएगी। अब वो प्रैक्टिस करते हैं उसको। अब वो ये नहीं समझते कि वो प्रैक्टिस करने से पहले हमको जो है इसका मोबिलाइजेशन करके गर्दन को वो फ्लेक्सिबिलिटी मोड में हमको लाना है। जब तक हम इसको वो लेवल पे नहीं लाएंगे तो हमको जालंधर बंद नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी बंद नहीं करना चाहिए। पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, षटकर्म का अभ्यास करो, आसन का अभ्यास करो, उसके बाद में आप जो है बंद की तरफ आप आगे जा सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन का जो हम स्ट्रेच करते हैं, आप आगे झुक गए, सर को नीचे ड्रॉप कर दिया, मानो जैसे कि आपका जो मस्तक है वो जाकर जो है घुटने पर टेक रहा है। अब वो मस्तक वहां पर रेस्ट कर रहा है, ये जो हाथों से आपने पकड़ के रखा है तो ये एल्बो को ऐसे बेंड करके नीचे की तरफ पुल करो एंड यू विल फील द होल नेक एंड द शोल्डर ब्लेड्स गेटिंग पुल्ड अप। दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर योर नेक। तो ये थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है, नो डाउट। At the same time, we are not supposed to become more physical, but somewhere you are helping your neck to become stronger. That is how you are helping yourself. हाँ सर, एक सवाल था। जी हाँ आपने बताया कि वो जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जी, उनके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आर दे लोकेटेड इन द कैविटी no, of the see this, so how does this, the chin touching the hollow, how does it activate those nerves? I will let you know. These nerves are always active for your information. आप योग करो या नहीं करो, ये अपना काम करते रहते हैं। They are always active. And when we talk about nerves, they are coming out from the spine, they are coming out from the back of the head, they are coming out of the back of the neck. Okay, and when they are coming out, they are connected to your thyroid glands, they are connected to your tongue, they are connected to your ears, they are connected to your eyes, they are connected to your nose, and at the same time the 10th cranial nerve, which we call as vagal nerve, it is such a beautiful God's creation. Right from the brain,
it is connected up to your genitals, up to your anus region. अब आप सोचो कि जब आप ये जालंधर बंद करते हैं तो सिर्फ आप आपके गले की तरफ ही आप जो एक्टिवेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है. It is stimulating up to the navel as well as into the legs also, you can consider. But अच्छा, when you do the chin lock, how come you can say that it is stimulating? तो chin lock ऐसे हुआ, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिखा कि यहां पर जो है आपने उसको स्ट्रेच किया, एक्सटेंड किया. ये चिन लॉक जो है थोड़ी देर के लिए पैसिव हो सकता है, लेकिन ये जो यहां पर जो एक्सटेंशन हुआ है वो बहुत ही एक्टिव रहता है. तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम बोलते हैं कि आप पार्शियल जालंधर बंद लगाओ. तो पार्शियल जालंधर समझो ये मेरा नेक का पोजीशन है, तो पार्शियल जालंधर बंद ये हो गया, फुल जालंधर बंद ऐसे हो जाता है. लेकिन मैं अगर उनको बोलता हूं पार्शियल जालंधर बंद लगा के करो क्योंकि तुमको गर्दन में तकलीफ है, उनको भी फायदा होता है. Because you are doing partial extension of the spine wherein the pressure or the stimulation on the nerves coming out from your spinal column or the cervical vertebrae, they are also getting active. क्यों मालूम है? अगर मैं ये बताऊं ना तो आपका जो एक्सियल है, आपका जो वर्टेब्रेज हैं स्पाइनल कॉलम के, उसके सबसे ऊपर जो एटलास एंड एक्सिस, ये जो है उसकी पोजीशन कहां है मालूम है? ये यहां पर. ये देखो मैंने हाथ कहां पर रखा है, ये मेरा सर है. आप अगर कभी हाथ लगा के पीछे देखेंगे ना तो सर की हड्डी यहीं पे खत्म हो गई और यहां पर डिप्रेशन है. अभी गर्दन तो मेरी यहां से शुरू होती है, लेकिन यहीं पर आपको वो फील होगा. तो अंटिल दैट पोजीशन योर स्पाइनल कॉलम इज एक्सटेंडिंग, और वहां पर जो है पाइवट की तरह जो है आपका जो खोपड़ी है, आपका जो स्कल है वो वहां पर है. वो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट मूवमेंट होता है. हमको कभी कभी लगता है कि हमारा गर्दन से ही मूवमेंट हो रहा है, बट नो, ये गर्दन का एक्सटेंशन यहां तक है, बिल्कुल सर के एकदम पीछे पीछे आपके जो है वहां तक एक्सटेंडेड है. और बिल्कुल उसको लगकर जो है ना आपका जो, ये समझो अगर कभी ये मुट्ठी, अगर कभी मैं आपको ब्रेन बताऊं तो ये ब्रेन ऐसे शेप में नहीं रहता है, ये ब्रेन हमेशा ऐसे शेप में रहता है. It is always floating like this. It is not like this. It is like this. The moment it is like this, this is if your hind brain, ये जो भाग जो आपका hind brain है वो एटलास एक्सिस से कनेक्टेड रहता है, जहां से मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और जो पॉन्स जो है नर्व्स छोड़ना शुरू करते हैं, और वहीं से ये नर्व्स जो है आपके चेहरे की तरफ और गर्दन की तरफ आ जाती है. एंड वी हैव डन दिस इन आवर एक्सियल, जो हमने जो बोन का जो हमने देखा, टिश्यूज का जो हमने देखा, अभी भी कंटिन्यू है. शायद हो सकता है, पता नहीं हमने वो किया क्या नहीं किया, आगे करेंगे. बट दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ द क्रेनियल नर्व्स आर सपोर्टेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. मैं मसल की बात नहीं कर रहा हूं. मसल्स आर सपोर्टिंग द बोन्स, बट हाउ द बोन्स आर in that the skeletal, how the skeletal system is supporting the whole body, that becomes important. वो ढांचा जो है हमारा वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए प्रैक्टिस करते समय. सो दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. और आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब हम चिन लॉक लगाते हैं तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो क्या नर्व्स यहाँ पर हैं? बिल्कुल नहीं. लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो ये पीछे एक्सटेंशन आ जाता है. वो एक्सटेंशन जो है आपके जो है नर्व्स की तरफ खिंचाव ले जाता है, क्योंकि जितना आप उसको बेंड करेंगे उतना एक्सटेंशन बढ़ेगा और उतना खिंचाव ज्यादा आएगा. इट इज लाइक पुलिंग फ्रॉम द लीवर. आप लीवर के ऊपर जब बेंड करके पुलिंग करते हो तो वो जो है जितना आप नीचे की तरफ बेंड करोगे उतना खिंचाव आपको ज्यादा दिखाई देगा. इट इज लाइक दैट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. yes. Sameer, तो breathing कैसे रहती हाँ. सॉरी, हाँ है? आप हाँ, बोलिए बोलिए. सुनिए. Go on, sir. तो मैं ये कह रहा, मुझे ये लग रहा था कि इन ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ बोइंग. So does it have something to do with activation? I don't know, but what you are saying is very true. Hmm. This taking of the chin down and bowing down is always there in all the sections where wherever you go, whichever religion you follow, there is a concept of bowing down with your head down and taking your head down. So it may be related to that Yeah, also. it may be related. Yes. It is.
देखो, let me tell you, when I was attending to one of the lecture in archaeology, I came across a point that even in the temples, the sacred murti which is kept, it is to be understood with all the distance, with the understanding of the Shat Chakras in our body. आप कोई भी मंदिर में चले जाओ, वो मंदिर का डिजाइनिंग ही ऐसे होता है कि आपका आज्ञा चक्र जो है, आपके जो मूर्ति का जो स्थान होता है, अधिष्ठान जो होता है, वो आज्ञा चक्र का होता है। वैसे ही विशुद्धि चक्र का भी, और आपके जो है अनाहत चक्र का, और आपके लिंग का, ये सब के अपने अपने जो चक्र हैं, मंदिर के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये स्थान आपका द्वार कहां पर है, मूलाधार चक्र। सो द्वार से लेकर अधिष्ठान तक जो है, ये षट चक्र 6 जगह होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये हमारे टेम्पल, जो हमारे आगम और पुराण जो है, उसमें ये बाकायदा टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जो विधि है, जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमन स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएगा। सो इफ अ ह्यूमन इज लाइंग डाउन ऑन द बैक, right from the top of the head to his Mooladhar chakra, the whole thing is about that place of Mandiram and how those things have been kept there. तो अगर शिव जी का मंदिर है और अंदर अगर कभी लिंग रखा हुआ है, तो नंदी कहां पर बैठेगा, कछुआ कहां पर होगा, कछुआ आगे कहां पर रखा जाएगा, और वो कछुआ नाभि के स्थान पर कैसे आएगा, ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये एक्चुअल, अभी आजकल हमारे मुंबई शहर में तो क्या है, कहीं पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा तो वहां पर एक पत्थर रखकर मंदिर बना देते हैं और काम शुरू हो जाता है। उसको मंदिर नहीं बोलते, दैट इज नॉट अ टेम्पल, बिकॉज देयर एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड देयर, नथिंग इज देयर। लेकिन जो एक्चुअल टेम्पल्स बनते हैं, वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, षट चक्र के हिसाब से, विधि के हिसाब से, कैसे होना चाहिए, किस तरफ मुख होना चाहिए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ऐसा, ये हमको ये इसलिए एहसास कराया जा रहा है कि भाई आपका अपना शरीर भी तो एक मंदिर है, और आपके शरीर के अंदर कौन सा स्थान किस जगह पर है, उस स्थान को जब आप अभ्यास करते हैं, तो आपको किस तरह से उनके ऊपर नियंत्रण पाना है। ये जिस तरह से मंदिर के अंदर जाते ही आपको जो सुकून का एहसास होता है, अगर ये मंदिर के अंदर आपने वो चेंजेस लेके आए, तो कौन सा सुकून का एहसास होगा, ये तो अल्टीमेट समाधि बता देती है आपको। So all this is beautifully connected. The science of yoga, the science of Shat Chakras, the science of Vastu Shastra, these are all internally, even the science of astrology, even the science of Ayurveda, they are all interconnected. And that is where it becomes very important for all of us to understand. Thank you, sir. Thank you. Yeah. What Thank was you, sir. breathing, Yeah. breathing during Jalandhar Bandh? Breathing Sorry? का कैसे? It Breath has का to be held, it has to be held in, or it has to be held out. You have to either hold the breath in or hold the breath out. अच्छा, which is better? Holding in is always better. That will be in pranayam, no? While if it Yeah. is done within kumbhak. Yes. And why I'm saying it is better? Because it is safe. Why I'm saying it is safe? Because the pressure which we have cultivated because of breath in our lungs, and when we go for chin lock, there is always an intimation from inside when to release. और क्या होता है, अगर हमने सांस को बाहर रोककर किया, तो वो इंटीमेशन तो हमको मिलता ही है, लेकिन सांस को बाहर रोककर करने में कभी कभी इंसान जबरदस्ती कर बैठता है, और वो जबरदस्ती जो है ठीक नहीं होती। क्योंकि जैसे ही आप चिन लॉक रिलीज करते हैं और सांस इस तरह से लेते हैं, ऐसे करके आप सांस लेते हैं, तो जैसे ही आप वो भर के सांस लेते हैं, तो जितना आपने मेहनत किया वो सब पानी फेर दिया आपने। यस, क्योंकि सांस को बाहर रोककर आपने जबरदस्ती से मेंटेन किया, और जैसे ही आपने रिलीज किया करके मुंह खोलकर आपने सांस ले लिया। सो दैट इज द प्लेस वेयर यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द प्रैक्टिस ऑफ जालंधर बंद इटसेल्फ. So ideally, you should always do Jalandhar Bandh with your breath in.
That is what is advised by all the teachers. Okay, yeah. सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायकः षण्मास अभ्यासाद योगी षण्मास अभ्यासयो ही स सिद्धो नात्र संशया। देखो यहां पर इन्होंने इसको इतना एग्जैगरेट कर दिया कि तुम 6 महीना इसका प्रैक्टिस करो, तुमको सक्सेस मिल जाएगा योग में। कि मास्टरी ऑफ जालंधर बंध ब्रिंग सक्सेस टू योगीज, ही हु प्रैक्टिसेस दिस फॉर 6 months is undoubtedly an adept, that is he is a master in yoga. Of course we should practice it regularly, but at the same time keeping all the things in our mind where we are comfortable and going ahead. ये सेंटेंसेस हमको मोटिवेट तो बहुत करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमने प्रिपरेशन जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो सब हमने किया या नहीं किया। So here a precaution should be always there in the mind. तो सागर भाई, जी क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है ऑन द एंटायर पर्सनालिटी System. साइकोलॉजी पूरे सिस्टम पे, तो फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन अपने देख ली, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कुछ होती है क्या? हाँ बिल्कुल। सी जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिजिकली आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी सेंसेस वाइज जो है आप विड्रॉ हो जाते हैं। when you are getting withdrawn with senses, for your senses the main control is your brain. Correct. So obviously your brain is getting that required rest. आपका फ्रंटल लोब, आपका ऑसिपिटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब, फिर बाद में आपका जो है पैराइटल लोब, ये सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं फीडबैक ही नहीं आ रहा है कुछ। तो जैसे उनको ये पता चलता है कि फीडबैक नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, शायद हो सकता है हमारा रेस्ट का टाइम आ गया। तो वो रेस्ट करते हैं और वो रेस्ट के समय जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है और इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा डिस्कनेक्शन सारे इमोशंस से भी हो जाता है। भले वो इमोशंस जो है हैप्पीनेस की तरफ हो हमारे मौखिक भाषा में, या फिर प्रॉब्लम्स की तरफ हो, या दुख की तरफ हो। सुख और दुख के जो इमोशन जो हम डिफाइन करते हैं, उसका कोई यहाँ पर असर ही नहीं होता, क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से फ्री हो जाता है। जैसे ही लिम्बिक सिस्टम को वो फ्रीडम मिलता है, ऑटोमेटिकली देयर विल बी द रिलीज ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारे हॉर्मोन्स क्या है? कुछ और नहीं, लेकिन हमारी योग की भाषा में हम उसको कहते हैं अमृत। चंद्र से अमृत का सार शुरू हो गया, और जैसी वो रिलीज होता है हमारा एक्सपीरियंस उसमें बढ़ता है। सी व्हेन यू आर गेटिंग इमोशनली डिस्कनेक्टेड विद द मटेरियल वर्ल्ड, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलता है। कैसा रहता है? हम बोलते हैं ना कि मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता। हमने यहाँ पर डिफरेंस कैसे क्रिएट किया? क्योंकि इसकी जो आदतें हैं वो आपको पसंद है, इसकी जो आदतें हैं वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा आपको है। लेकिन उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है आपके मेंटल फैकल्टी में आ जाता है, आपके ब्रेन लेवल पर आ जाता है। और वो डिस्क्रिमिनेशन हम क्या कहते हैं कि एक तरफ मटेरियल वर्ल्ड मैटर और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। एक बार ये ब्रेन को अगर कॉन्शियसनेस का टेस्ट मिल जाए, वो बार बार आपको बोलेगा कि क्या रखा है ये दुनिया में, उधर चलो। वो आपको उस तरफ खींचेगा, और जैसे ही वहां पर आपका खिंचाव बन जाता है, बिलीव मी, साइकोलॉजिकली यू आर सच अ पर्सन कि आपके सामने कितना भी गंदा काम, बुरा काम होने दो, आप विचलित नहीं होंगे, आप एकदम स्थिर रहेंगे। और यही कहते हैं पतंजलि मुनि योग शास्त्र में, योग सूत्र में क्या कहते हैं? उपेक्षा। जब उन्होंने चित्त प्रसादनम की बात की, तो उन्होंने क्या कहा? मैत्री, करुणा, मुदिता, ये तीनों के तीनों देखो इमोशनली बेस्ड हैं। और उन्होंने उपेक्षा की बात की किसकी तरफ? अपुण्य की तरफ। उन्होंने कहा कि समझो पुण्य हो या फिर अपुण्य हो, लेकिन तुम्हारा माइंड जो है वो चित्त प्रसादनम से किसके लिए ट्रेन हो जाता है?
उपेक्षा के लिए। और जैसी आप उपेक्षा का वहां पर एटीट्यूड कल्टीवेट करते हो, ले आते हो, माइंड में अंदर वो चेंजेस लेके आते हो, ऑब्वियस है कि उस समय जो है आपको मटेरियल चीजों से जो भी कनेक्टिविटी है, आपको ऐसा लगेगा कि कहां मैं फिर से कर्मों में फंसने जा रहा हूं। लेट मी बी डिवॉइड ऑफ द कर्मास, लेट मी नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू इट। तो जैसे ही वो थॉट्स आ जाते हैं तो दुनियादारी से आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक साधु के लिए क्या न्यू ईयर का सेलिब्रेशन या किसी की मैयत का जलसा निकल रहा हो, ये दोनों में उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई लेना देना, उसके लिए दोनों एक जैसे रहते हैं। भगवत गीता में इसका स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है कि ना आपका सुख ना आपका दुख आपको विचलित कर सकता। समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये जो डेफिनेशन में ही हमको मिलता है, वो क्लैरिटी हमको योग के अभ्यास से हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर आ जाती है। और मेंटली, इंटेलेक्चुअली आप जो है चीजों को जैसे है वैसे तटस्थ रूप से देखने लगते हो। एक प्रकार का जो विटनेस भाव जो आप कहते हैं, वो आने लगता है। देखो तरीके अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग इसमें। जैसे कि आप अभी विपश्यना कर रहे हो, तो विपश्यना के अंदर जो है वही चीज आती है लेकिन तरीका अलग है। योग में भी वही चीज आती है लेकिन तरीका अलग है। तो सबका अपना-अपना तरीका जो है अलग-अलग होता है एंड ऑटोमेटिकली यू गेट इनटू इट। ज्ञान योग का भी पूरी तरह से सांख्य का मतलब ही क्या है? सांख्य इज एवरीथिंग बट ज्ञान ओनली। इट इज सांख्य का मतलब नंबरिंग से, वो ज्ञान से ही रिलेट करता है आपको। तो जैसे ही आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हो तो तापत्रय, तीनों दुख आप सांख्य कारिका में जब आप लेंगे तो आप इसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे। तो उसमें ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपका तीनों दुखों से जो है आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। भले वो आधि दैविक हो, आधि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, whether it is physical, whether it is mental, or you can say intellectual, or whether it is related to your karmas, everything you are getting disconnected with. This is the beauty of yogic practices. This is the beauty of practicing hatha yoga to that level. That is how we need to understand this. So can which applies to both the bandhas, can they be practiced independently also? जैसे केवल See जालंधर here the description which is given, it has been stated very clearly that you have to practice it independently. लेकिन एक बात और बोलता हूं, आप भले इसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो, उड्डयन बंद करोगे, आपका चिन लॉक और मूल बंद अपने आप लगेगा। आप जालंधर बंद करोगे, आपका एब्डोमिनल लॉक और मूल बंद अपने आप लगेगा। आप मूल बंद करोगे, आपका जालंधर बंद, उड्डयन बंद अपने आप लगेगा। ये कैसा मालूम है? आपके घर में कोई सक्शन मशीन होगी, हाँ? वो सक्शन मशीन जो है एक ही तरफ से काम करती है, लेकिन वो जिस तरफ से भी काम करती है, उसका पेट भी अंदर चला जाता है, उसकी पूंछ भी अंदर खींची चली जाती है। तो these three bandhas are beautifully connecting the whole internal system कि whichever practice you do, you are going to get connected to the other practice also. और सबसे बड़ी बात क्या है? फिर कॉन्शियसली हम प्राणायाम के अंदर ये तीनों प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करके हम प्राणायाम करते हैं, तो आप सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता होगा। You just go on understanding the impact of that practice. इसलिए वेदों में लिखा गया है, प्राणायामम परमम तपः। प्राणायाम से बड़ा तप और कोई नहीं है। जिसने प्राणायाम को सही तरीके से अभ्यास किया, ऐसा समझो कि उससे बड़ा तप और कोई नहीं। दे विल बी एबल टू रीच एवरी अल्टीमेट हाइट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि सब अपने आप हो जाता है। पतंजलि मुनि खुद कहते हैं, धारणा सुचा योग्यता मनसा। धारणा सु यानी धारणा, ध्यान और समाधि अपने आप होने लग जाती है। So that is the beauty of pranayam. And before that, we are learning these bandhas, which will be inculcated in the practice of pranayam. So this is how the bandhas are important. any safety issues involved with the bandha? In fact, bandhas are safety walls. अच्छा, हाँ, देखो, these bandhas are connected not only to the particular endocrine glands,
but they are also connected to certain baroreceptors and proprioceptors. These baroreceptors are the junctions, proprioceptors are the junctions which are connected to your brain, and they will always keep you reminded what is happening in that region and whether you should continue or we should release. The moment they pass on the indication to the brain will tell you release, और आप release कर सकते हैं. So this is the beauty of all the bandhas. In fact, जैसे मैंने कहा ना कि you can take them as an understanding of safety valve. अभी safety valve का concept क्या होता है? जैसे कि प्रेशर कुकर आपने स्टोव पर रख दिया, उसके अंदर जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो सीटी बजने लगती है, वाल्व ऊपर चला जाता है, and the air inside the pressure cooker is released, and automatically the pressure is managed. In the very similar manner, the bandhas are always going to help you to let the pressure get released at proper interval by reminding you that now it is time for you to release, otherwise it is going to harm you. This is how the three bandhas are also helpful. Yeah. So that was a nice question to be asked. It is of course मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि वो लोग जो अशक्त हैं, जिनको बीमारियां से वो लुप्त हैं, मतलब जो बीमारियों में लगे हुए हैं, लुप्त इन द सेंस उसमें ही गायब हो गए, बीमारी में ही गायब हो गए, ऐसे लोगों को जो है ये बंधास का अभ्यास नहीं करना चाहिए. पहले उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम, आसन का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, षटकर्म का अभ्यास करते हुए अपने नाड़ी शुद्धि को अंजाम देना चाहिए, और उसके बाद ही जो है उनको बंद की तरफ आना है. अब आगे देखो, मूलबंध आ गया आपके. पार्षिणा वाम पादस्य योनिम आकुंचयेत ततः नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधीः संपीडय यत्नतः. आगे लिखते हैं, मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधनम समाचरेत जरा विनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते. इसी को मूलबंध कहा जाता है. तो क्या टेक्निक बोला उन्होंने? कहते हैं पार्षिणा वाम पादस्य योनिम आकुंचयेत ततः. You press the perineal region with the heel of the left foot and then contract the anus region. तो heel से प्रेस करने के लिए भी कहा और फिर anus को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कहा. Then pressing the navel against the spine. देखो, अब ये navel against the spine हमने उड्डयन में पढ़ा था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि you try to press the navel also towards the spine. मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधनम समाचरेत. वो कहते हैं कि प्लेस द राइट एंकल ओवर द जेनिटल्स टू फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. दिस मुद्रा which is called as मूलबंध is going to be very helpful in old age, overcoming old age. और जैसे हमने हठ प्रदीपिका में उड्डयन बंध के लिए ये पढ़ा था ना, वृद्धोपि तरुणायते, यानी बूढ़ा भी जवानी को महसूस करने लगता है. वैसे ही जो है मूल बंध के लिए भी कहा गया है, वृद्धोपि तरुणायते. तो दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है या उसके ऊपर अच्छा खासा रोक लगा देती है. रोक लगाने का मतलब क्या हुआ? एजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हमारी जो कैटाबोलिक एक्टिविटी है शरीर की वो स्लो हो जाती है. एनाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाती है. तो एनाबॉलिक एक्टिविटी का फास्ट होने का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से एक जवान इंसान का शरीर काम करता है, आपका शरीर भी उतना ही सशक्त हो जाता है काम करने के लिए. और जैसे एक बुढ़ापे में इंसान का शरीर जो है स्लो हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको वो स्लोनेस दिखाई नहीं देगा. उल्टा आपको ये नजर आएगा कि in spite of being so and so years old,
you are still having that energy to manage with most of the activities of your day-to-day life. ना? वो पहले ना टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आता था, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। आपने सुना होगा कभी? अभी तो नहीं आता वो एडवर्टाइज, हमारे बचपन में ही आता था वो। तो एक बूढ़े को बताया तो उन्होंने चलते हुए, और दूसरी तरफ एक थका हुआ जवान भी जो है चलते चलते ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो उन्होंने वहां एडवर्टाइजमेंट पे लिख दिया। तो हमारे बच्चों ने, टीटीसी के बच्चों ने उसी एडवर्टाइजमेंट को उड्डयन बंद के साथ में रिलेट करके स्किट के अंदर प्रेजेंट किया था कि आप ये प्रैक्टिस करते रहो, यू विल आल्सो फील यंग। एंड दैट वाज though it was taken in a joking manner, but at the same time it was well presented. तो ये सारी चीजें जो हमको मॉडर्न अपने आप को संभालने के लिए लगती हैं, अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो बाकी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू विल हैव एवरीथिंग एल्स इन योरसेल्फ। या दैट इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। तो ये जो जी बोलिए बोलिए। दो चीज बताई ना, एक तो लेफ्ट हील अगेंस्ट द पेरिनियम। हाँ, वो जगह आप चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले आप लेफ्ट हील को पेरिनियम पे रखकर करिए, उसके बाद में जब आप रिलीज करेंगे तो दूसरा राउंड आप राइट हील को पेरिनियम के पास रखें और लेफ्ट हील को जो है जेनाइटल्स के ऊपर रखें, ताकि आप दोनों साइड को जस्टिफाई कर सकें। अब वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमको वो समझना चाहिए। मतलब द आइडिया इज कि द पेरिनियम शुड बी प्रेस्ड one way or it another. should be pressed, yes, and it has been emphasized in all the text, even in Hatha Pradipika, even in Hatha Ratnavali, as well as here, because this is the independent practice of Moola Bandha. And which is why also अभी आगे जिस महाबंध आएगा, पर मुझे याद है जब अपन हस्तप्रतिका पढ़ रहे थे तो बिल्कुल जानु शीर्षासन की पोजीशन में ही रख के आई थिंक महाबंध की बात की है ना, तो शायद इसी वजह से कि ताकि मूलबंध फैसिलिटेट। वो जानु शीरासन की पोजीशन में जो रख के करते हैं वो महामुद्रा। हाँ महामुद्रा, सॉरी। हाँ, वो महामुद्रा। महाबंध के अंदर जो है आप जो है वीरासन में बैठते हैं, या अर्ध पद्मासन आप बोलिए, जिसमें नीचे वाला जो पैर है वो आपके पेरिनियम के पास प्रेस करता है। What you are saying is right, but that is not happening in one leg straight. जानु शीरासन वाला जो है that is for महामुद्रा. For Mahabandha, you are sitting both the legs folded, but one leg is at the perineal region and the other leg is at the genital. It is like that. अच्छा, हाँ, one is at the perineal region, other is genital. तो वो तो फिर अच्छा, तो कौन सा मतलब एक पैर आपका पेरिनियल रीजन के पास, एनस के पास आ गया, और उसी पैर के ऊपर जो दूसरा पैर आप रखेंगे तो उसका हील जो है जेनाइटल के ऊपर का जो भाग है, जिसको हम संस्कृत में मेढ्र कहते हैं, दैट इज द प्लेस, दैट इज द पेल्विक फ्रंट, जेनाइटल के बिल्कुल ऊपर, वहां पर रखकर आपको उसका प्रेशर बनाना है। दैट इज वेयर यू आर रेडी फॉर द महाबंध विथ मूल बंध। हाँ, इनफैक्ट एक हील ऊपर और एक हील नीचे। हाँ, ओके, ऐसा है। लेकिन दोनों के दोनों हील जो है वो प्रेशर क्रिएट करने चाहिए, जबकि नॉर्मल प्रैक्टिशनर के अंदर वो पहुंचते ही नहीं, तो प्रेशर कहां से क्रिएट करेंगे? आप देख लीजिए जो स्टूडेंट्स का जो हाल होता है, हम उनको कहते हैं कि एक हील को जो है पेरिनियम के पास रखो, चलो जोर जबरदस्ती करके उसने रख भी दिया, लेकिन दूसरा पैर फोल्ड होके फिर ऊपर आता ही नहीं। तो फिर हम क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है नीचे का पैर आपका पेरिनियम के पास आ गया ना, दूसरे पैर को जहां तक आप फोल्ड कर सकते हैं फोल्ड करके उसको जमीन पे ही रख दो। एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस। दैट इज वेयर दैट पर्सन प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू गो अहेड। So, एक तो अर्ध पद्मासन में this can be I think somewhat managed. What is a more optimal आसन? वीरासन, जो हठ प्रदीपिका का जो वीरासन है, वो वीरासन में क्लियरली दिया हुआ है कि एक पैर जो है आपका नीचे होना चाहिए, दूसरा पैर ऊपर होना चाहिए। वो भी अर्ध पद्मासन के जैसा ही दिखता है, लेकिन अर्ध पद्मासन में क्या होता है, ऊपर वाला जो पैर है वो थाई पर रहता है, लेकिन इसमें जो है ऊपर वाला पैर जो है आपके जेनाइटल के ऊपर रहेगा। Virasana is where we are crossing both the legs, ना? मतलब एक knee is above the other knee. नो नो नो, अगर नी दोनों नी एक दूसरे के ऊपर है तो फिर वो गोमुख आसन हो गया। हाँ, गोमुख आसन का जो वन पार्ट है, राइट। तो फिर हील्स कहां से आएंगे पेरिनियम के पास? हाँ, वही तो। वो नहीं आएंगे।
हाँ हाँ हाँ। घुटने आपके अलग रहेंगे, राइट नी टू द राइट साइड, लेफ्ट नी टू द लेफ्ट Virasana साइड. में, where one knee is bent and the other knee is so very kind of we are ready to get up, वो जो वाले है ना, the one which is facilitated, वही है ना वीरासन? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है. अर्ध पद्मासन के जैसा ही है वो, अच्छा, बट इट इज नॉट अर्ध पद्मासन. ओके। वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक पैर को आपने नीचे जमीन पर फोल्ड किया और एक पैर को आपने वर्टिकली फोल्ड किया, हाँ हाँ उसको 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 कई बार जो है हम उसको हनुमान आसन भी कहते हैं. हाँ, हनुमान आसन भी कहते हैं, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। हनुमान जी जो है एक पैर को फोल्ड करके ऐसे नीचे रखते हैं ऐसे और दूसरे पैर को जो रखकर गदा को अपने पकड़ते हैं वो ऐसे, करेक्ट 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 करेक्ट। तो उसको हनुमान आसन भी कहा जाता है. बट दैट इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज व्हाट वी हैव मेड इट हैपन. वो कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको इसका वर्णन नहीं मिलेगा ऐसा. अच्छा, ठीक है. हम ये कर लें क्या महाबंध भी, बिकॉज नाउ इट इज ऑलरेडी 12:12. तो वी otherwise we will keep it for the other class because here the explanation will take at least 10 minutes. तो अगली तो बार कर कंप्लीट लेते हैं। अगली बार हाँ। करेंगे उसको, अगली बार के लिए रखेंगे. सो मूल तो बंध और के कोई लिए, मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं. हाँ जी. हाँ, मूल बंध के लिए प्रिपरेशन फिजियोलॉजिकल क्या रहेगी? सबसे पहले तो प्रिकॉशंस ये होने चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये सब नहीं होना चाहिए. अगर ये सब नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद द प्रैक्टिस ऑफ अश्विनी मुद्रा. अभी आगे जाके हम अश्विनी मुद्रा को पढ़ेंगे. तो अश्विनी मुद्रा का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? एक्सलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना और इनहेलेशन के टाइम पे रिलैक्स कर देना गुदा को. तो जैसे ही आप ये करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पिंक्टर मसल्स हैं, जो रिंग लाइक स्पिंक्टर मसल्स हैं आपके एनस में, वो मूलबंध की प्रैक्टिस के लिए, लॉन्गर प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाते हैं. और वो एक बार रेडी हो गए, फिर आप ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक आपका मूलबंध जो है अपने आप लगा रहता है. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने एक्सेल कर दिया तो आपका मूलबंध भी छूट जाता है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मूलबंध आपका लगा रहता है. यानी मैं तो आपको एक बात और भी बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि प्रैक्टिस के टाइम पे तो मूलबंध रहता ही रहता है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते मैं देखा हूं कि हमेशा मेरा मूलबंध जो है हल्का सा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है. तो वो एक आदत सी हो गई है कि भाई डेमो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो हम लगा रहे हैं, और फिर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी लगा रहे हैं. तो उसके अंदर वो आदत सी ऐसी हो गई है कि आप शांति से अगर कभी चेयर पर भी बैठ गए तो वो अपने आप लग जाता है कभी कभी. उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं है. इनफैक्ट इट इज गुड, it is good to enhance the required heat in the body. हाँ, उसका प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो यू हैव टू कॉन्शियसली अवॉइड द मूलबंध टेकिंग प्लेस. दैट इज बेटर. और वो सबसे, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है मूल शोधन क्रिया. मूल शोधन जो है, जो हम हमारे अंगुली में जो है लुब्रिकेट करके तेल या घी लगाकर गुदा के अंदर हम जो है गोल गोल ऐसे हल्के से घुमाते हैं, या ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं. दैट्स ऑल. दैट इटसेल्फ हेल्प्स फॉर यू टू रिमेन हेल्दी एंड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ मूलबंध. अच्छा, ये क्या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी हेल्पफुल रहेंगी मूलबंध के? अश्विनी मुद्रा और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आर नॉट डिफरेंट, ओह, दे आर वन एंड द सेम. जो कीगल एक्सरसाइज हम कहते हैं, हाँ वो जी, कीगल एक्सरसाइज कुछ और नहीं, वो अश्विनी मुद्रा ही है. अच्छा, ओके, आपको कहेंगे कि पैर को फोल्ड करो, दोनों पैरों के बीच में एक गुब्बारा रखो या फिर एक पिल्लो रखो, और आपको थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करके वो पिल्लो को प्रेस करने के लिए बोलेंगे जब आप एक्सहेल करते हैं. जब आप इनहेल करेंगे तो उसको लूज रखने के लिए बोलेंगे आप. तो दैट इज कीगल एक्सरसाइज. द सेम कीगल एक्सरसाइज इफ यू आर डूइंग with Ashwini Mudra and Ashwa Mudra, it is Kegel exercise only. तो कीगल एक्सरसाइज में ऐसा हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि कीगल एक्सरसाइज इज मोर फिजिकल, whereas Ashwini Mudra and Ashwa Mudra are more internal. जी.
ठीक। खास करके जो एजेड लोग होते हैं, जैसे 65 प्लस 70 प्लस होते हैं, हम उनको मना करते हैं कि वो मूलबंध की प्रैक्टिस ना करें। अगर वो पहले से करते आ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन नए स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको हम लिटरली मना करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको उनके फिजिकल चेंजेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और उसके चलते अगर कभी उन्होंने मूलबंध जैसी प्रैक्टिस की तो आगे जाके उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं, तो दे शुड अवॉइड। आशुतोष सर, कुछ मन में शंका है? ऑल क्लियर? ओके, देन वी विल गो अहेड एंड वाइंड अप. Sit with your spine erect. Keep your eyes closed. Just allow the whole body to settle down. Breathe consciously. Let us go ahead. Inhale. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gently open your eyes. Thank you. Thank you, sir. Another very illuminating session. ये 3 बंद का मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है अपने योगिक प्रैक्टिस में, सो वी शुड कीप दैट थिंग इन माइंड. Extremely important. Yes, yes. So that's how we should be keeping it. और कैसा है, आज हमने सुन लिया, हो गया. अब ये तो रिकॉर्डिंग तो अपने पास रहती है, नो डाउट, लेकिन आप जितना इसके बारे में वाचन करेंगे, जितना इसके बारे में रीडिंग करेंगे, दैट मच इट विल हेल्प. द मोर यू रीड, द बेटर इट इज. It's like that. Yeah. So any sharings taking place? So practice has been regular, but there is one, one advice that is required. So when we are doing Kapalbhati, you had emphasized that the rhythm should be maintained. Now, what I find is, but you had also said that the spine should be erect. Spine should be. तो मेरा कभी-कभी ये हो जाता है कि spine थोड़ा सा फिर ऐसा हो जाता है. Then when I pay attention to the spine, then the rhythm is affected. तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? आपका म्यूट है सर. आपका म्यूट है. Yeah, thank you. तो एक की तरफ ध्यान देते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है. एक सेकंड. Sunil bhai, yes, now we can go ahead. See, your spine should be erect, no doubt. Keeping your spine erect, you should try to maintain the rhythm. Now this is the thing which you have to keep into a regular practice, so that the erectness of the spine is becoming conditioned and rhythm is consciously observed. It should be like that. अब क्या होता है कि जैसे आपका पीठ आगे हो जाएगी, आपको ये रियलाइज हुआ, तो एकदम से आप स्ट्रेट नहीं करना. आपको क्या करना है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव स्लाइटली कम डाउन. पूरे रिदम को मेंटेन करते हुए धीरे से आप अपने चेस्ट को ऐसे ही बना के रखो, एंड यू विल कंटिन्यू विद द रिदम. सी, रिदम नो डाउट हैज अ लॉट टू डू विद द फ्लो. लेकिन आपको एक पता होगा, even in sports like hockey, like ice hockey, people are floating on the floor
and at the same time they are maneuvering. So maneuvering is the rhythm, and maintaining the balance is the required composure of the body. You are not losing the body state, but at the same time you are able to maneuver in that awkward state. तो अभी शायद हो सकता है पीठ को सीधा रखने के लिए आपके लिए एक awkward state होगा, because you are not habituated yet to that level. But as and when your practice continues, you will find that पीठ का सीधा रखना आपके लिए conditioned हो गया है, and the rhythm will also get established. So it is just only a matter of few days, and you will be able to get along with that. Okay, right. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. हाँ. Yeah. Thank you. Saibir bhai, जी. I have been chiefly doing and 12 या समझो 13 iterations उसके कर लेता हूँ. एटलीस्ट मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते में 6 में से शायद 5 दिन, 4 या 5 दिन हो गया था. कौन सी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आप? सूर्य नमस्कार. अच्छा, हाँ. तो कुछ क्या सूर्य नमस्कार में कुछ कॉशन, मतलब आई हैव बीन यूजिंग द, जो आपने वो स्क्रोटल सपोर्ट की बात अपने लास्ट टाइम की थी, तो वो दैट इज द, आई एम काइंड ऑफ वेयरिंग दैट. इज दैट सफिशिएंट? कोई और? मोर देन इनफ. अच्छा. Any other precaution that one has to take, before, prior to the Surya Namaskar? सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम preferable, no? हाँ, always. See, सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि आप एक प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, तो बॉडी का वार्मिंग अप होना ही चाहिए. So you should do सूक्ष्म व्यायाम, no doubt about it. कैसा है, कुछ प्रैक्टिसेस जो योग की प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम नहीं भी किया और आपने डायरेक्ट प्रैक्टिसेस किए, तो वो चल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका मेन एम होता है रिलैक्सेशन का. सूर्य नमस्कार में मेन एम होता है आपका बॉडी को एक्टिवेट करके टोनिंग करने का. ओके. तो देयर यू शुड वार्म अप द बॉडी एंड देन गो अहेड विद सूर्य नमस्कार. वैसे एक समय के बाद में, जैसे कि समझो अपने 1-2 साल आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर ली, फिर शायद ही सूक्ष्म व्यायाम की आपको जरूरत है, आप वैसे ही सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. थोड़ा सा हल्का फुल्का आपने 2 मिनट भी बॉडी का मूवमेंट कर लिया, कलाइयों को हिला दिया, कमर को मूवमेंट में लेकर आए और शोल्डर का रोटेशन कर दिया, तो यू आर रेडी. हाँ, राइट. बट एज अ प्रोसेस और एज अ माने जो प्रॉपर टेक्निक में, always सूर्य नमस्कार should be preceded by सूक्ष्म व्यायाम. Always. I will strongly recommend that. Okay. So क्योंकि इंजुरी आपकी कम हो जाती है. जी. और I have also found, मतलब मेरे को करीब, मैं ऐसा करता हूँ जैसे 3 राउंड किया और फिर हल्का सा स्टैंडिंग पोजीशन में ही about a minute and a half रेस्ट करना. हाँ, तो क्या ये ठीक है? एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है. ओके. तो इस तरह से मैंने देखा कि करीब 15 से 17 मिनट मुझे लगते हैं 13 राउंड करने में. Is that too fast, too slow? No. It is perfectly fine. See, nothing is too fast or too slow. You should understand how it is helping you to remain peaceful. That is our aim, ना, ultimately. कि हम व्यायाम भी कर रहे हैं, exertion भी feel नहीं हो रहा है, we are feeling energetic, so that is right. और ये person to person vary करता है. जी, that is right, of course. ठीक है. और क्या ये सीक्वेंस फिर ठीक रहेगा? जैसे सूर्य नमस्कार किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर सूर्य नमस्कार किया, फर्ज कीजिए एक सेशन हो गया, फर्ज कीजिए मॉर्निंग सेशन हो गया, और फिर इवनिंग सेशन में अपने रेगुलर आसन किए. Is that a better sequence? No doubt. You can go ahead with that. Okay. और आसन के बाद अगर प्राणायाम किए जाएं, मतलब आफ्टर आसन करके फिर रिलैक्सेशन किया, always, या it is better. Always. हाँ, अच्छा, तो ठीक है. अच्छा, एक जो सुबह, यानी कि सुबह में always better to do pranayam, right? As we have been emphasizing all along. Yes, and you can do that pranayam after doing Surya Namaskar. Oh, अच्छा. हाँ. क्योंकि सुबह में हल्की सी बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है, तो वो एकदम अर्ली मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार का वो अभी तो कम से कम बनता नहीं है.
इन द सेंस कि अभी रेडीनेस शायद बॉडी की ना हो। हाँ, नहीं तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे नहीं कह रहा मैं। हाँ, लेकिन आइडियली अगर कभी सूर्य नमस्कार के बाद में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले हाँ, मुझे कहा कि मैं जी, सुबह सूर्य नमस्कार का अभ्यास करूंगा, तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद में आप शवासन कर लीजिए, और शवासन के हाँ, बाद में आप सूर्य नमस्कार का अपना ये प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, चलेगा। अभ्यास कीजिए। हाँ, ठीक तो है, आपका मॉर्निंग का ठीक है। मॉर्निंग में भी प्राणायाम हो जाता है, इवनिंग का इवनिंग में भी हो जाता है। जी, 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 जी। ठीक है। मैंने अभी फिलहाल क्या लेट मॉर्निंग रखा है, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है ना सब रे, राइट, राइट। हाँ, तो इस और वजह से वो। और हाँ, और एक हाँ, बात मैं कहता हूँ, अगर ज्यादा सर्दी है तो हाँ, मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, जी, 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 ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसी ग्रंथ में हठ प्रतिदिका में हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो। जी, 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 जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फेयर इनफ। हाँ, तो बस यही अभी इस हफ्ते का प्रैक्टिस जो है सूर्य नमस्कार सेंट्रिक था। शायद अगले हफ्ते में थोड़ा आसन भी आफ्टर दैट, मतलब इन अ सेपरेट सेशन मैं आसन का अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। आई विल जी। शेयर इन द कमिंग संडे कि श्योर, वो श्योर, कैसा रहा। श्योर, श्योर। वी विल डू दैट। ठीक, या, राइट, थैंक यू। ओके, राइट सर, जी, या। थैंक यू, ओके, नमस्ते। नमस्ते आशुतोष नमस्ते। सर। नमस्ते। या, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नहीं, आप कुछ नमस्ते। कहने वाले थे सर। नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं अभी तो मैं अपने परसों से जो कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उसकी तरफ आंख लगा के बैठा हूँ। परसों से हो रही है ना कैवल्य धाम में, हाँ, 28, यस। 28। तो उसमें उसके लिए अभी उत्सुक उत्सुक हूँ। नहीं, वी विल that will be really interesting. It will be राइट। really a guiding thing for us. Yeah. यस। थैंक जी। यू सर। नहीं, थैंक यू। वाकई ओके। बहुत मोटिवेटिंग होती है कॉन्फ्रेंसेस, मैंने देखा। हाँ सर, कॉन्फ्रेंसेस जो है जाके एक बड़ा उत्साह जनरेट होता है। अब देखो हम लोग तो जा रहे हैं, अभी ये ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रेशर आ रहा है। उन लोगों ने पहले तो टेस्ट के लिए ना बोला था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि डबल डोज के साथ साथ आपको आरटीपीसीआर कराएंगे तो ये एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये अच्छी बात है, एक्चुअली सबकी तो सेफ्टी की आपने सोचते हैं वो। आरटीपीसीआर करवा लिया अभी या नहीं, करवा अभी लेंगे नहीं। आप? मैं कल करवा लूंगा। अच्छा। तो क्योंकि आरटीपीसीआर का रिपोर्ट तो सुबह कराओ तो शाम को मिल जाता है आपको, कोई इश्यू नहीं है अच्छा। उसमें। करेक्ट। हाँ, तो सुबह कराएंगे तो शाम तक मिल जाएगा, तो वही उनको मेल भी कर देंगे और साथ में हार्ड कॉपी भी लेके चले जाएंगे। ओके सर। या, और डबल डोज का क्या करेंगे? डबल डोज तो पहले कर लिया हमने। हम ना बोलते रहे, लेकिन कॉलेज से भी इंटीमेशन आ गया था कि अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर अगर आप डबल डोज नहीं लेंगे तो आपको आने नहीं देंगे। तो सितंबर में हमारा पहला हो गया, और ये दिसंबर के अच्छा, 15 तारीख को दूसरा भी कंप्लीट कर लिया हमने। अच्छा, 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 वो भी हो गया, तो चलिए, ऐसा इश्यू चलिए, फिलहाल तो all नहीं है set। अभी। चलिए। लेकिन राइट अभी सर। वो ये समझ हाँ, में आ रहा है सर कि वो वैक्सीन बोलते हैं, लेकिन वो वैक्सीन है नहीं, क्योंकि डबल डोज के बाद भी हो जाता है। हो कितने जाता है। लोगों को हुआ है? तो ये इनफैक्ट, वैक्सीन बोलना इसके लिए गलत है ये। हाँ, और इनफैक्ट जैसे अभी आप इंग्लैंड का देख लें तो उन्होंने वहां पर बूस्टर मैंडेटरी कर दिया। वो बूस्टर के बाद में भी लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है। तो इन फैक्ट सर, मैक्सिमम जो है ओमिक्रॉन इज हैपनिंग ओनली टू डबल डोज पीपल। ओ आई सी। आई सी। ये आप देखिए, ओ। आप देखिए, गौर कीजिए। ओमिक्रॉन हाँ में हाँ खास हाँ तौर से हाँ। जो मैंने देखा है, जो फीचर है वो ये कि 10 में से 8 लोग जो हैं डबल डोज वाले हैं। तो फिर वो राइट, वेरी ट्रू। डबल डोज को वैक्सीन कर कहना बहुत गलत है फिर। गलत ये ही है एक्चुअली वो। चीटिंग है, चीटिंग है, बहुत चीटिंग है। ये हाँ, बहुत बड़ा करेक्ट। स्कैम है सर। ये रिकॉर्ड हो बहुत रहा है, बड़ा अपने को समय। रिकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए। अरे बंद कर बट ये दीजिए बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, कदम सर उसको एडिट कर देंगे, नो डाउट, बट एट द सेम हाँ, टाइम he will edit it. इट इज अ लेकिन बिग Correct, correct. वैक्सीन स्कैम। का मतलब क्या है? वैक्सीन का मतलब है कि ये आपको होगा नहीं। हाँ, अगर लेकिन वो वैक्सीन के सब बाद होता है तो फिर वो वैक्सीन नहीं है, कुछ एक ऐसा ही एक प्रिवेंटिव कुछ है, ऐसा बोलना चाहिए था। एक्चुअली कैसा है कि इन्होंने वो एक ये डाल दिया ना कि 60% चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विल बी नॉट देयर,
ऐसा। I see. तो लेकिन बाकी के 40% में हम आ जाते हैं। हाँ, अब हाँ, आप फिर- हंसेंगे, अब आप, हाँ, अब आप हंसेंगे। हमारा एक फ्रेंड है जिसको आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, उसने आरटीपीसीआर करवा लिया। एक के पास जाके आरटीपीसीआर करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया। तो उसके ट्रैवल एजेंट ने उसको बोला, घबराइए मत सर, आप दूसरे के पास जाके करा लीजिए, वो नेगेटिव आ जाएगा। और वो दूसरे के पास गया और करवाया तो नेगेटिव आ गया। वो बोला, अब तो ये हमारे यहाँ कुछ ये भी हो रिपोर्ट लेकर सकता है आप पहुंच सर। जाइए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं हम। पॉजिटिव बिना टेस्ट के भी आपको नेगेटिव दे नहीं, देंगे। तो रिपोर्ट मिल जाते हैं, बिना टेस्ट के भी रिपोर्ट मिल जाते बिना टेस्ट के भी खाली रिपोर्ट आपको मिल पैसे जाएगा। देने और हैं से भी बस। सुना है। बस हाँ बिल्कुल। This वो is true. ब्लड टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में कहते हैं ना सर, बेसिन टेस्ट। वो ब्लड सैंपल लेके बेसिन में डाल देते हैं और आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देते हैं। बेसिन टेस्ट, अच्छा। तो सिर्फ प्रिकॉशन लेना सबसे जरूरी है। सबसे मास्क बेस्ट थिंग इज पहनना, टेक हाथ प्रिकॉशंस। हाँ, बस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दैट इज द मोस्ट Sir, इम्पोर्टेंट थिंग। योग अभ्यास इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। मेरा तो Yes. अनुभव That भी is यही true. कहता है, और कॉन्सेप्चुअली भी यही बात है कि इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए योग अभ्यास से अच्छी कोई चीज ही नहीं। राइट, ट्रू। ठीक है।